Very good morning to one and all students. Welcome to your TSN English class. Let's begin with the second video of this chapter. This is chapter number 7, Birth, from your book Snapshot. And this one is your last chapter of this book. So let's read the chapter from your an hour later. And we have discussed this earlier that there are 2 3 characters in the chapter, and the first one is that we are talking about here right now, that is Jo Morgan, jinki wife jo hai wo expectant, and she is ready to give birth to a child. So she is in labor pain condition, and the first character of the story, second character of the story, you can say that, is Dr. Andrew Manson, who is treating Jo Morgan's wife. So let's read it from here. So this is the situation of Joe Morgan's house, where the labor pain or all the things are going on, and a midwife and his mother, Dr. Joe Morgan's mother, who is like 70 years old, so they accompany Dr. Andrew Manson. So let's read that. An hour later, he went upstairs again, noted the progress made, came down once more, sat by the kitchen fire. It was still, except for the rustle of a cinder in the grate and the slow tick tock of the wall clock. No, there was another sound, the beat of Morgan footsteps as he paced in the street outside. The old woman opposite him sat in her black dress, quite motionless, her eyes strangely alive and wise, probing, never leaving his face. So what was going on here कि after an hour later when he went upstairs again, 1 घंटे के बाद डॉक्टर एंड्रयू मेंसन वापस से स्टेज से ऊपर जाते हैं, जहाँ पे जो मॉर्गन की वाइफ जो है वो बैठी होती है, जो मॉर्गन की वाइफ जो है वो बैठी होती हैं. एंड आफ्टर दैट व्हाट वाज गोइंग ऑन देयर, दैट इस बीच में वो देखते हैं कि ओके कि व्हाट इज़ द प्रोग्रेस मेड केम डाउन वंस मोर, और वो देखते हैं कि आगे क्या प्रोग्रेस है ड्यूरिंग दैट डिलीवरी और ऑल द प्रोसेस. एंड अगेन जो है डॉक्टर एंड्रयू मेंसन, वो डिलीवरी प्रोसेस के लिए रसोई घर में या किचन में उस फायर के पास में बैठ जाते हैं. इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेट. और वहाँ पे जब वो बैठे हैं, सो दिस इज़ लाइक अ सिंडर. सिंडर इज़ वॉट, एक चिंगारी, या आप कह सकते हैं काइंड ऑफ अ, एक ऐसा तरीके का चूल्हा विच इज़ मेड अप ऑफ अ मेटल लाइक आयरन और समथिंग लाइक दैट, वी कॉल्ड इट सिगड़ी. एंड वो लकड़ी के कोयलों से आने वाली जो आग है, हल्की सी आवाज़ है, वो उसको सुन रहे हैं. एंड एट द सेम टाइम जो वॉच है, सो द वॉइस ऑफ द वॉच वॉज देयर. एंड after that, no, there was another sound, the beat of Morgan footsteps as he paced in the street outside. The old woman opposite him sat in her black dress, and there was no sound. So there was no sound over there, and that lady. So एक आवाज़ और भी नहीं थी वहाँ पर. इवन बाहर गली में जो है, जो मॉर्गन के फुटस्टेप्स की आवाज़ थी, जो कि वो बार बार जब वो, बिकॉज जो मॉर्गन वॉज लाइक 10th at that time, because his wife was in labor pain. So एंड एक ब्लैक ड्रेस में एक जो ओल्ड विमेन है, जो कि बिल्कुल कैसे बैठी थी, क्वाइट मोशनलेस. सो शी सिटिंग मोशनलेस एंड हर आइज स्ट्रेंजली अलाइव एंड वाइज. और उनकी आइज में एक अलाइवनेस एंड वाइजनेस थी. सो प्रोबिंग, नेवर लीविंग हिज फेस, एंड इट लुक लाइक जैसे उनका जो फेस है, सो कुछ खोजबीन सी करती हुई उनकी आंखें, एंड उनके चेहरे से कभी नहीं हट रही थी. सो हिज थॉट्स वर हैवी, muddled. This episode he had witnessed at Cardiff Station still obsessed him morbidly. He thought of Barnwell, foolishly devoted to a woman who deceived him sordidly, of Edward Page, bound to the shrewish Baldwin, of Denny living unhappily apart from his wife. His reason told him that all these marriages were dismal failures. It was a conclusion
dismal failures. It was a conclusion which, in his parent state, made him wince. So he wished to consider marriage as an idyllic state. Yes, he could not otherwise consider it with the image of Christine before him. So here, students, because जो डॉक्टर एंड्रयू मेंसन है, ही इज़ अपसेट बिकॉज ऑफ हिज गर्लफ्रेंड और हिज लव्ड वन. सो उनके जो थॉट्स हैं, दे वर हैवी एंड मडल्ड. वो बिल्कुल भी द थॉट्स आर लाइक अनक्लियर एंड वेरी हैवी. वो बहुत ही ज़्यादा अपने थॉट्स को लेकर ही बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे थे. द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन. और वो उस इंसिडेंट, एपिसोड हियर मीन्स उस इंसिडेंट को रिकॉल कर रहे थे जो उनके साथ कार्डिफ स्टेशन पे उन्होंने देखा था. और वो उसे अभी डॉक्टर एंड्रयू मेंसन को वो इंसिडेंट से उसे भूल नहीं पाए थे. सो दैट इंसिडेंट इज़ लाइक विच ही विटनेस्ड, जो उन्होंने खुद ने देखा. तो सो ही इज़ ऑब्सेस्ड हिम बाय मॉर्बिडली. उस इंसिडेंट ने उन्हें पूरी तरह घेर रखा था. तो ही थॉट ऑफ ब्रामवेल. तो उन्होंने वहाँ ब्रामवेल के बारे में सोचा, जो उस महिला के प्रति बेवकूफ़ी भरे तरीके से पूरी तरह उन्होंने फुलिशली डिवोटेड टू अ वुमन हु डिसीव्ड हिम सॉलिडली. सो उन्होंने उस एक लेडी के लिए अपनी पूरी लाइफ को डिवोट किया जिसने उन्हें डिसीव किया था, या उन्हें सॉलिडली डिसीव्ड मीन्स बहुत ही बुरे तरीके से उसने धोखा दिया था. नेक्स्ट वन इज, सो ही बाउंड टू शूइश बॉल्डन ऑफ डेनी लिविंग अनहैप्पीली. और उसके बाद उन्होंने एडवर्ड पेज के बारे में सोचा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा चालाक और औरत बोल्डविन से जुड़ा हुआ था. और डेनी के बारे में सोचा, जो अपनी पत्नी से अलग होकर दुखी लाइफ को जी रहा है. एंड आफ्टर दैट ही थिंक अबाउट apart from his wife, and his reason told the conclusion in which he present the made him wince. और उसके बाद उन्होंने उस बूढ़ी औरत के बारे में बताया कि ये मैरिजेस जो होती हैं, दे ऑल आर लाइक डिसमल फेलियर्स. किस तरह बुरी तरीके से ये फेलियर्स होती हैं. यह एक ऐसा कंक्लूजन उन्होंने निकाला जिसमें, सो दिस इज़ बेसिकली अ कंक्लूजन इन विच इन हिज प्रेजेंट स्टेट मेड हिम विंस. जिससे उनकी प्रेजेंट स्टेज में जो है वो ही इज़ नॉट शिवरिंग, यू कैन से दैट, शिवरिंग इन हिज प्रेजेंट स्टेट. विंस हियर मीन्स काइंड ऑफ शिवरिंग जो है उनकी कंडीशन हो गई थी. तो ही विश टू कंसिडर मैरिज एज एन आइडियलिक स्टेट. दैट इज़ वाई उन्होंने मैरिज को एक आइडियलिक स्टेट भी कहा है. सो he could not otherwise considered it with the image of Christine before him. So अगर वह अपने सामने क्रिस्टीन की इमेज ना ला पाते तो किसी कारण या किसी और रूप से भी सोच नहीं सकते थे. तो अभी जो है पूरी तरह डॉक्टर एंड्रयू मेंसन जो है वो क्रिस्टीन और इस इमेजेस के बारे में ही सोच रहे हैं. सो इट वॉज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल and doubting mind and his overflowing heart which left him resentful and confused. And he left overflowing heart with him, let his chin sink upon his chest, stretched out his leg and stared broodingly into the fire. And he remained like this so long, and his thoughts were so filled with Christine. And he started when the old woman opposite suddenly addressed him. Her meditation had pursued a different course. So what was going on here कि डॉक्टर एंड्रयू मेंसन जो है वो उन्होंने जो दैट इंसिडेंट और दैट एपिसोड जो उन्होंने देखा था अपनी लव्ड वन, दैट क्रिस्टीन का, वो उनके सामने, आंखों के सामने आ रहा था. एंड ड्यू टू दैट सो मेनी थॉट्स आर कमिंग इन हिज माइंड एंड ही इज़ थिंकिंग अबाउट दैट कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा क्या हो जाएगा, ये होगा तो वो हो जाएगा, और मैरिजेस आर लाइक दैट डिसमल फेलियर्स, और इस तरह की मैरिज एज एन आइडियलिक स्टेट. वो ये सारी बातें अपने माइंड में सोचने लगे. नाउ मूव ऑन टू योर इन दिस पैराग्राफ योर स्टूडेंट्स दैट हर आइज. सो अब हम आगे बढ़ते हैं. हर आई शाइनिंग टुवर्ड्स हिम. उसकी जो आंखें हैं वो उनकी तरफ देखकर चमक रही थी. एंड एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन, और वो किसी और अदर कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे थे. इट वॉज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल. ये उनके लेवल पे अभी भी एक तरीके की वो कॉन्फ्लिक्ट में थे, कन्फ्यूजन में थे. डाउटिंग माइंड एंड हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट. अब उनका माइंड जो है बहुत ज़्यादा डाउट कर रहा था. एंड हिज हार्ट वॉज ओवरफ्लोड विद ऑल दोज थॉट्स इन विच
that woman, Christine. So, sorry, when she deceived him, so his mind is full of all those thoughts of deceiving and all these things. एंड आफ्टर दैट आप देख सकते हैं कि डॉक्टर एंड्रयू मेंसन जो है ही विच लेफ्ट हिम रीसेंटफुल एंड कंफ्यूज, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही शिकायत से भरे और विचलित होकर पूरी तरह उनका माइंड जो है वो ऐसा हो गया है. एंड ही लेट हिज चिन संक अपॉन हिज चेस्ट, और अब उन्होंने अपनी चिन को अपने चेस्ट के ऊपर इस तरह संक कर लिया है. अपनी टांगों को उन्होंने और ज़्यादा फैलाया और अपने आगे के जो थॉट्स हैं वो उनमें पूरी तरह, तो ही वॉज फिल्ड विद द थॉट्स ऑफ क्रिस्टीन एंड ही स्टार्टेड व्हेन द ओल्ड वुमेन ऑपोजिट सडनली एड्रेस्ड हिम. और उसके बाद उन्होंने काफ़ी देर इस तरह वो सोचने के बाद, जब वो गहरी तरीके से सोच रहे हैं, तो उन्होंने तब तक कि सामने वाली जो ओल्ड वुमेन थी, जब तक उन्होंने उसे एड्रेस नहीं करा, सो हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स. और इस तरह उस महिला का जो मेडिटेशन है दैट परस्यूड इन सम अदर और सम डिफरेंट कोर्स. सो दिस इज़ द थिंग विच इज़ गोइंग इन अ डॉक्टर्स माइंड्स ऑल्सो. तो कि इसमें ये भी बताया है दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी टू थिंक अबाउट हिज प्रोफेशन और ऑल दिस थिंग्स. सो योर एंड्रयू मेंसन इज इन कंडीशन वेयर व्हेन दैट lady he deceived him, that Christine, his loved one. So after deceiving that particular thing, जब उन्हें वो टाइम मिला 1 hour का भी, या जब उनके पास टाइम था, that woman goes through that labor pain and he is thinking in a something very very different way, students. So I hope you understood all these things. So let's come to the next page here. Suzanne said not to give her the chloroform if it would harm the baby. She is awful set upon the child, Dr. Bat. Her old eyes warmed at a sudden thought. She added in a low tone, we all are, I fancy. अब क्या हो रहा है, इधर अलग सिचुएशन चल रही है. सूजन ने कहा कि उसे क्लोरोफॉर्म ना दें, जिससे कहीं बच्चे इससे नुकसान ना पहुंचा जाए. और डॉक्टर साहब को उसने ये कहा कि इस बच्चे को वो बहुत ज़्यादा ऐसा आप करें. सो शी ऑफुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड. सो इस बच्चे को बहुत ज़्यादा चाहती है. एंड डॉक्टर को क्या कहा उसने कि उसकी जो बूढ़ी आंखों में अचानक ही विचार आ जाने से, जो बहुत ज़्यादा लाइटन अप हो गई थी, सो वॉर्म्ड एट अ सडन थॉट दैट शी एडेड इन अ लो वॉइस. सो इसलिए उसने ये सारी चीज़ें बहुत ही धीमी आवाज़ में कही कि मेरे ख्याल से हम सब भी यही चाहते हैं. एंड आफ्टर दैट ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट. डॉक्टर ने अपने आप को एफर्ट्स लगाए. ही वोंट इट वोंट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक, ही सेड काइंडली, एंड दे ऑल बी ऑल राइट. बिकॉज द डॉक्टर जो है वो एनेस्थेटिक इंजेक्शन देने वाले हैं. सो दैट सुजैन said that not give her the chloroform, it would harm the baby. और वो बेबी को बहुत प्यार करती है. बट डॉक्टर said that it won't do any harm. तो डॉक्टर उन्हें बिल्कुल ऐसा फील कराते हैं कि ये एनेस्थेटिक उनके बेबी को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा. और ही सेड द थिंग वेरी काइंडली एंड दे ऑल बी ऑल राइट. और ये वे सब बहुत जल्दी, यानी कि वे सब योर मीन्स दे ऑल बी ऑल राइट मीन्स द मदर एंड द चाइल्ड विल बी ऑल राइट सून. एंड योर द नर्स वॉइस वॉज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप landing. Andrew glanced at Jack, which now showed 3:30. He rose and went up to the bedroom. He perceived that he might now begin his work. अब 1 घंटा यूं ही हो गया. सो उसके बाद इसी मौके पर उन्होंने नर्स की आवाज़ सुनी. दैट ही वॉज सो द वॉइस ऑफ वॉज हर्ड फ्रॉम कॉलिंग लाइक टॉप लैंडिंग, जो कि उन्हें सुनाई आ रही थी. एंड एंड्रयू ग्लैंस एट द क्लॉक. एंड डॉक्टर एंड्रयू मेंसन ने क्लॉक की तरफ देखा, विच नाउ शोड 3:30, विच जो कि घड़ी में 3:30 का टाइम हो रहा था. एंड ही रोज एंड वेंट अप टू द बेडरूम. वो उठे और वहाँ से बेडरूम की तरफ गए. एंड ही परसीव्ड दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क. अब उन्होंने सोचा कि मुझे अपना वर्क स्टार्ट कर देना चाहिए. एन आवर elapsed. It was a long harsh struggle. Then as he first streets of
Down stayed past the broken edges of the blind, the child was born lifeless. And after that 1 घंटा यूं ही जब हो गया तो एक इट वॉज लाइक अ लॉन्ग हार्श स्ट्रगल, एक बहुत लॉन्ग हार्श स्ट्रगल था. देन एज ही फर्स्ट स्ट्रीक्स ऑफ डॉन स्ट्रेड पास द ब्रोकन एजेस, और जब वो सामने के पर्दे के फटे हुए किनारों से पहली जो सूरज की किरण है वो जब गुजरी तो बच्चा जो है उसका बर्थ हुआ. तो द चाइल्ड वॉज बॉर्न. योर द चाइल्ड वॉज बॉर्न बट अ वर्ड इज रिटन ओवर योर स्टूडेंट्स. यू कैन सी योर दैट इज लाइफलेस. तो द चाइल्ड वॉज बॉर्न. तो फाइनली डॉक्टर एंड्रयू मेंसन जो अपने पास्ट के बारे में सोच रहे थे, देन अब उनका प्रेजेंट में वो जो मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे थे टू दैट वुमेन हु इज़ लाइक इन दैट लेबर पेन सिचुएशन. सो आफ्टर दैट एक इतना आफ्टर 3:31 आवर के बाद काफ़ी स्ट्रगल के बाद व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न दे सॉ दैट एवरीबडी सॉ दैट ओवर देयर दैट द चाइल्ड वाज लाइफलेस. सो स्टूडेंट्स विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो इन आवर next part of our chapter in our next video. Till then, stay safe. Thank you all.